اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. आज बेटा हम डिस्कस करने चाहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वी कैन सी electrical properties of solid. Electrical properties of solids. We are going to discuss about the electrical properties of solids. So we can say बेटा कि बाज सॉलिड्स मैग्नेट को रिस्पॉन्स करता है whilst other are not response to the external magnetic field, external current, electric field. उसकी वजह ये है कि हमारे साथ जो एटम्स होते हैं, here is nucleus and the last shell is called valence shell. Valence shell is which shell? That is the outermost shell is called valence shell, and the electron in the valence shell are called valence electrons. Valence electrons. Okay जनाब. Similarly, अगर आप देखें हमारे साथ एक और शेल या बैंड होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. कंडक्शन band. So the band after valence band, the band after valence band is called conduction band, and the electron is called conduction electron. The electron present in the conduction band is known as conduction electron. So there is another band which is called conduction band. In some solids, there is the conduction band is so close with the valence band that they are overlapped with each other, and such phenomena occur especially in the conductor. Like this one is the valence band. एक मिनट बेटा, एक मिनट आप सब्र करें. And here this one is called conduction band. This one is called conduction band. So they are overlapped with each other. So जिस सॉलिड्स में साइंटिस्ट ही कहते हैं, मैंने कोई आंख कैमरे से नहीं देखा है, कि सॉलिड्स में जो कंडक्शन बैंड अगर वो इसमें ओवरलैप होता है तो इसको बेटा हमारे साथ एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. लेकिन जो एनर्जी गैप है इन दोनों में उसको हम जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं. देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड सच थिंग इज नोन एज कंडक्टर. Such thing is known as conductor. So बाज सॉलिड्स में करंट क्यों जाता है, इसके दो जवाब है कि there is no forbidden energy gap, or we can say कि conduction band is overlap with the valence band. So that's why we can say कि वो conductor current क्यों allow करता है, because the valence band will be overlapped with the conduction band. The second things that we want to discuss over here is what Shahbaz that we want to discuss over here is the insulator. It is what we want to discuss over here is insulator. Insulator में valence band and conduction band have very high
We can say what, Shabas? Forbidden energy gap. Forbidden energy gap. And energy gap should be greater than, we can say, 3 electron volt. Up to 15 electron volt. It's possible up to 15 electron volt. And such thing is known as insulator, where the forbidden energy gap is very large. But we have a third type of conductor, which is known as semiconductor. Semiconductor. And in semiconductor, the gap will be neither so small that it is overlap, neither so large. And that's the forbidden energy gap should be less than 3 electron volt. And in some books, it is mentioned that it is about 1 electron volt semiconductor. So at normal condition, at 0 degree centigrade, electron cannot jump from valence band to the conduction band. And hence, as long as electron is here in the valence band, it will not participate in the conduction band. And it will behave like insulator band. It will behave like what, Shabas? Insulator. So a semiconductor will behave like insulator for 0 degree centigrade. But at 25 degree centigrade, it may allow the current which is being as a conductor band. So एक semiconductor हमारे साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होते हैं? वो मेरे साथ कंडक्टर्स होता है। ये किसने हमें बता दिया बेटा? ये एनर्जी बैंड थ्योरी ने हमें बता दिया कि बाहर सॉलिड्स में करंट क्यों जाता है, बाहर सॉलिड्स में करंट क्यों नहीं जाता है, उसका रीजन आपको मैंने बता दिया बेटा, क्योंकि एंटिटीज के लिए सिर्फ आप याद रखो। जरा बेटा मुझे आप सेमीकंडक्टर के बारे में बताइए कि ये जो हमारा सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये बेटा हमारे साथ किस तरह होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। एक हमारे साथ होते हैं, वी कैन से अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, अनडोप्ड, जिसमें कोई मिलावटी एटम हम नहीं डालते हैं। दूसरा हमारे साथ होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर। सो अनडोप्ड एंड डोप्ड सेमीकंडक्टर। अनडोप्ड को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अनडोप्ड का दूसरा नाम क्या है? बस अनडोप्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अनडोप्ड एंड डोप्ड सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हमारे साथ बिल्कुल पेवर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल, pair form of germanium or silicon crystal is known as undoped semiconductor या intrinsic semiconductor. While doped is such type of semiconductor जहां पे हम किसी we can say डालते हैं मिलावटी एटम। डॉप्ड सेमीकंडक्टर को आगे जाकर आपको मैं इसकी मिसाल देता हूं, लेकिन जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे साथ 2 तरह के होते हैं। या तो हमारे साथ होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिक में, और या हमारे साथ होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस एन टाइप और पी टाइप को आगे जाकर मैं आपको समझाता हूं। पहले हम वी कैन से एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आपको मैं बात करना चाहता हूं। पेवर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, ये जर्मेनियम का एक क्रिस्टल ऐसे बनता है जहां पे सारे के सारे एटम्स जर्मेनियम ही के हैं। ऐसे सारे एटम्स किसके हैं? जर्मेनियम ही के हैं। ऐसे ऐसे ठीक है जनाब।
जरा अब हमें बताइए जनाब, जर्मेनियम किस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है जनाब? सर जी, इट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4A। ग्रुप नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इसमें होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आहा, समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा होने तो दो ना। अच्छा, केमिस्ट्री वाले कहते हैं ऑक्टेट पूरा करेगा, बेचारा एक दूसरे की कदमों में गिरेगी, एक दूसरे सवाल करेगा कि आओ अपना घर बसाते हैं। लड़ना नहीं है, घर बसाने के लिए रोना पड़ेगा जनाब, ऐसे। ओके जनाब, दिस इज एक्स सिलिकॉन का क्या है? शाबाश, वी कैन से क्रिस्टल है, जर्मेनियम क्रिस्टल। हमारा आपसे सवाल यह है कि हमने यहां पे पोटेंशियल लगा दिया, दो प्लेट्स हमने लगा दी ऐसे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और हमने यहां पे एक बैटरी के साथ इसको अटैच किया। कितना करंट होगा? पर हमने बिल्कुल इसको कितने टेम्परेचर पे रखा? टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कोई बॉन्ड टूटेगा? नो बॉन्ड विल बी ब्रेक, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। बॉन्ड ना टूटने का मतलब यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब यह है कि कितना करंट होगा? शाबाश, करंट यहां पे होगा जनाब 0, सॉरी अप्रोक्सीमेट नहीं बल्कि एग्जैक्टली 0 होगा। द करंट विल बी इक्वल टू 0। करंट क्या होगा? 0 होगा जनाब। करंट क्या होगा? 0 होगा। क्यों जनाब? कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बिजी है बॉन्ड बनाने में जनाब, उसने बॉन्ड बनाया है। एक मर्तबा इसकी बारी खत्म हो गई है जब तक कि कंडक्शन बैंड में ना आ जाए बेटा। कंडक्शन बैंड के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां से मिलेगा? कहां से मिलता है जनाब? टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा। सो वी कैन से, अगर हम यहां से इसको फिर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया। 25 डिग्री बराबर है 298 केल्विन के बराबर है। कितने के बराबर है? 98 केल्विन के बराबर है। हाँ, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटा? यस सर। कौन सा चीज आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। जरा पीछे आ जाओ ना जनाब, पीछे आ जाओ, पीछे। यहां से क्या गया जनाब? सेमीकंडक्टर में इस डायग्राम पे आ जाओ, शाबाश। कैसे? ऐसे बेटा, यहां था वैलेंस बैंड, यहां होगा कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, नीचे से एनर्जी मिल गया, ये जाएगा कंडक्शन बैंड में। यहां पे क्या चीज छोड़ा जनाब? एक सुराख छोड़ा। इस सुराख को हम कहते हैं होल, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। हमारे साथ पैर पैदा हो गया, जोड़ा पैदा हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉन होल पैर पैदा हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सेमीकंडक्टर की आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने से यहां पे आएगा जनाब होल, यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल के जोड़े पैदा होंगे। सो वी कैन से, जितने वी कैन से होल्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आए हाय, यहां पे मैंने लिखा है एक्सट्रिंसिक नहीं है, ये एंट्रेंसिक है बेटा, एंट्रेंसिक है। गलत लिखा था मैंने, सॉरी। इंट्रिंसिक पावर फॉर्म है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। याद रखो बेटा, n होल्स के बराबर होगा इंट्रिंसिक में, जहां पे आप मिलावट नहीं करेंगे बेटा। जितना दूध आपने बैंक से लिया है उतना ही तुम्हारे वो जो चीज जिसमें आपने डाला है दूध, उतना ही होगा। पर मिलावटी दूध क्या होता है? दूध आपने बैंक से लिया होगा कम, आपने क्या डाला होगा? पानी डाला होगा बेटा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बेटा,
Number of electron must be equal to the number of holes. Number of electron must be equal to the number of holes. In which semiconductor? NO, intrinsic semiconductor. अच्छा जनाब, जरा तुम ईमान से बोलो, ये होल्स यहाँ पे और बॉन्ड भी टूटेंगे ना, इस बॉन्ड ने भी टूटना है, टेम्परेचर बढ़ाओ, ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इस सुराख को फिल करेगा, होल्स यहाँ पे आएंगे, इस तरह यहाँ पे होल्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह यहाँ पे होल्स आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम देखेंगे होल पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे है, यानी जरा देखो ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं बेटा, होल्स ऐसे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। होल्स को अगर आप देखें, इफ यू लुक टू द होल्स, होल्स क्या है? होल कोई फिजिकल चीज नहीं है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सेंस रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है बेटा। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी है। फॉर एग्जांपल सोडियम का जो एटम है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो हम सोडियम के ऊपर इस तरह +1 डालते हैं कि नहीं डालते हैं? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। इट मीन्स कि होल कोई मटेरियल बॉडी नहीं है। दीवार से आपने किसी ईंट को निकाल दिया ना, सो दीवार में क्या आएगा? सुराख आएगा कि नहीं आएगा? तो वो सुराख क्या है? वो ईंट है या कोई और चीज है? नहीं जनाब, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ईंट की कमी को रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कि जनाब होल्स वेल एक्ट्स लाइक प्रोटॉन इज नॉट द सेम एज द प्रोटॉन। बेटा अभी से मैं कह रहा हूं, प्रोटॉन की तरह नहीं है, पर प्रोटॉन जैसा बिहेव करता है। कैसे? प्रोटॉन जनाब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है कि नहीं अट्रैक्ट करते? तो होल भी अपने लिए क्या अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो वी कैन से होल्स विल एक्ट लाइक अ प्रोटॉन, इट्स नॉट द सेम एज द प्रोटॉन। प्रोटॉन तो मटेरियल बॉडी है, होल कोई मटेरियल बॉडी तो नहीं है, वो तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। आपको मेरी बात की बेटा समझ आ रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी अगर आप पीछे देखेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? शाबाश, वीकेंड से फ्लो करेगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपको कुछ ना कुछ करंट देगा। सो बेटा आप जरा मुझे एक बात बताइए शाबाश, व्हेन टेम्परेचर वाज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वी कैन से हियर करंट वाज इक्वल टू 0, दिस मींस रेजिस्टेंस इसका बहुत क्या था शाबाश? वी कैन से हाई था, रेजिस्टेंस हाई था इसलिए तो करंट नहीं। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया, करंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका टेम्परेचर क्या, रेजिस्टेंस क्या हो गया? लो हो गया। जरा इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, अल्फा क्या होता है शाबाश? वो चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय वी कैन से आर नॉट, साथ में क्या होता है? डेल्टा टी एस। सो चेंज लो कैसे निकालते हैं? आर एफ माइनस आर नॉट फाइनल, आर एफ से मुराद है टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, डिवाइड बाय वी कैन से आर नॉट इनटू वी कैन से डेल टी। सो मेरे साथ क्या होगा शाबाश? ये कम है, ये क्या है? ज्यादा है बेटा, तो जवाब किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। एंटिटीज के लिए बेटा याद रखो, अल्फा हमारे साथ सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। Temperature coefficient of resistance and resistivity is negative. This means the higher the temperature, the lower will be the resistance. इस तरह बेटा अल्फा हमारे साथ इंसुलेटर के लिए क्या होता है शाबाश? इंसुलेटर के लिए वो भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और अल्फा हमारे साथ कंडक्टर के लिए क्या होता है शाबाश? कंडक्टर के लिए अल्फा हमारे साथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया जनाब? यस सर, ये हमें हमारी समझ में आ जाए। ये मेरे साथ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है, ये ऐसा होगा। सो वी कैन से बेटा कि दिस कंडक्शन इज नोन एज इंट्रिंसिक कंडक्शन। द कंडक्शन इज नोन एज इंट्रिंसिक कंडक्शन। ऐसे कंडक्शन को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक कंडक्शन कहते हैं। अब आ जाओ बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये लास्ट टॉपिक है इसका, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब है डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड
is called what? Shabash, extrinsic semiconductor. Doping क्या करते हैं? Doping the addition of some impurity. The process of adding impurity, beta. Process of what? Shabash? Process of adding impurity with a pebble semiconductor. With a pebble semiconductor is known as doping. Doping अगर आप देखें दो तरह के होते हैं। एक हमारे साथ होते हैं पेंटावेलेंट, एक हमारे साथ होते हैं ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट कितना होता है शाबाश? पेंटावेलेंट दैट इज ग्रुप नंबर 5A से हम उठाते हैं। इसको हम किससे उठाते हैं? ट्राइवेलेंट ग्रुप नंबर 3rd A से हम उठाते हैं। ये ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमारे साथ हाय लेला न करब से फरियाद बेगम मुझे कहने से बाज रख बाबर अली गिलानी यानी कहा से गया सनावला नेशनल पार्टी असेंबली से बाहर। अच्छा सॉरी नेशनल यान मुझसे खपा ना हो जाओ, लेकिन वो तरीके के नेशनल पार्टी असेंबली से बाहर। तो मैं अरसीने को उठाता हूँ। यहां से ग्रुप नंबर 5 में मैं क्या उठाऊंगा? अरसीने को उठाऊंगा। यहां से मैं क्या उठाऊंगा शाबाश? एनडीएम को उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा? एनडीएम को उठाऊंगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को अगर आप किसी इसमें पेंटावेलेंट को ऐड करेंगे सो ओरिजिनल हमारा होगा जनाब जर्मीनियम। ओरिजिनल हमारा क्या होगा? जर्मीनियम। ओरिजिनल एटम्स तादाद में क्या होते हैं शाबाश? वीकेंड से ज्यादा होते हैं। और मिलावटी एटम तादाद में क्या होते हैं? वीकेंड से कम होते हैं। ऐसे यहां पे एक मिलावटी एटम है इलेक्ट्रॉन से। यहां ये इलेक्ट्रॉन जिनके अब क्या है शाबाश? फ्री हैं, कंडक्शन बैंड में है, तो दे कैन गो। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री इलेक्ट्रॉन है सो ये तो है सेमीकंडक्टर लेकिन इंट्रिंसिक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड दिस वन इज नेगेटिव। यहां पे ये बॉन्ड टूट जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहां पे होल आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह हो गए? एक किस्म से ज्यादा हो गए। पहले एक होल के लिए क्या था शाबाश? एक इलेक्ट्रॉन था। अब तकरीबन एक होल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। सो ऐसे को फिर हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इनमें एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। और इसका दूसरा नाम है डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी। क्यों डोनर कहते हैं? क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शाबाश? वीकेंड से डोनेट करेगा। दैट द रीजन इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। इट इज कॉल्ड विच इम्प्योरिटी? डोनर इम्प्योरिटी। सो वी कैन से कि हमारे साथ इसको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी, या वी कैन से दीज आर वी कैन से चार्ज, वी कैन से मेजॉरिटी चार्ज के वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ऐसे होल एन टाइप मटेरियल पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल रहेगा। क्यों बेटा? अक्सर कहते हैं कि एन टाइप मटेरियल हैव नेगेटिव चार्ज। वो कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। यार इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक से आया है, और आर्सेनिक के लिए क्या है? प्रोटॉन मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन मौजूद है।
तो इसे होल, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, यानी जीरो, वी कैन से ई चार्ज, एन टाइप। इस तरह से हमारे साथ दूसरे जो हमारे साथ होते हैं वो पी टाइप्स होता है बेटा, पी टाइप्स मटेरियल। पी टाइप्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो होते हैं होल्स। क्या होते हैं? होल्स। और हमारे साथ दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर एम्पेरिटी, also called acceptor impurities, and we can say कि as a whole ये भी क्या होता है शाबाश? न्यूट्रल होता है। क्या होता है शाबाश? न्यूट्रल। एज ए होल ये क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होता है। दिस कॉल्ड पी टाइप मटेरियल। एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यहां पे माइनॉरिटी चार्ज के रिस्क क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा। This P and N type material is called, we can say, extrinsic conduction, extrinsic semiconductor. P type and N type is called extrinsic, we can say what, Shabazz? Semiconductor. These are called which semiconductor? Extrinsic semiconductors is called. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम कहते हैं। So this was the end of chapter number 17. अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, जो इसके साथ बिल्कुल मिक्स है। चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 17 दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो चीज आता है वो पी एन जंक्शन आता है, जिसका दूसरा नाम है डायोड। इसका दूसरा नाम क्या है? डायोड। पीएन जंक्शन का दूसरा नाम क्या है? डायोड है। पीएन जंक्शन या डायोड्स क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल we have a p type material over here and we have also an n type material over here. Shit. Hi. Yes. दिस एन टाइप मटेरियल है। यहां पे मेजॉरिटी चार्ज के रिस्क क्या होते हैं? होल्स। और यहां पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यस, ठीक है बेटा। अब इसको हमने क्या करना है शाबाश? एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस। ये है जैसे हमने मिला दिया, इसको हम कहते हैं जंक्शन। लेकिन ये जंक्शन किस किस के बीच में है? पी और एन के बीच में है, यानी एक दीवार है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन ये है। जैसे हम मिलाएंगे ना बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरह भागेंगे। क्या करेंगे शाबाश? ऐसे भागेंगे, एंड एज ए रिजल्ट हमारे साथ इस तरह का कुछ चीज बन जाएगा ऐसे। ये वो जंक्शन है। एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो इस पर कौन से चार्ज आएंगे शाबाश? पॉजिटिव। और इसने एक्सेप्ट किया तो इस पर क्या आएंगे शाबाश? वी कैन से नेगेटिव आएंगे ऐसे। स्टिल यहां पे होल्स होंगे, यहां पे होल्स होंगे, यहां पे क्या होंगे शाबाश? वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें यहां पे हम दो मेटल लगाते हैं, यहां से हम क्या लगाते हैं? दो मेटल लगाते हैं। तो अगर आप उल्टीमीटर को उठाएं और इनको इसके साथ अटैच करें, यहां पे आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा बेटा। क्यों? ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह हमारे साथ एक चार्ज्ड कैपेसिटर होता है बेटा। चार्ज्ड कैपेसिटर, इसके एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है, दूसरे प्लेट पे क्या होता है शाबाश? नेगेटिव होता है चार्ज कैपेसिटर। सो इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा
कि यहां पे वोल्टेज मुझे कितना मिलेगा, या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, 0.7 वोल्ट मिलेगा, या 0.3 वोल्ट मिलेगा। ये क्यों? अगर आपने जर्मेनियम में मिक्सिंग किया है तो इतना मिलेगा, और अगर आपने सिलिकॉन में मिक्सिंग किया है तो इतना मिलेगा। ये जो वोल्टेज है जो 0.3 या 0.7 है, इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। व्हिच पोटेंशियल? बैरियर पोटेंशियल, रुकावटी पोटेंशियल है। ये रुकावट बन चुका है। किसके लिए रुकावट बन चुका है? ये जनाब एन इलेक्ट्रॉनों के लिए रुकावट बन चुका है, जो एन से पी तक छलांग लगाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन तो और भी है, वो भी एन से पी तक जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं सकते हैं। क्यों जनाब? क्योंकि ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको आसानी के साथ जाने नहीं देगा। तो इसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। सो बैरियर पोटेंशियल VB, दैट इज फॉर जर्मेनियम, इज 0.3 वोल्ट, एंड VB फॉर सिलिकॉन इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनाब इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में मोर स्टेबल कौन सा होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम में मोर स्टेबल हमारे साथ होगा जनाब, सिलिकॉन ही होगा। सिलिकॉन इज मोर थर्मली स्टेबल एज कंपेयर टू जर्मेनियम। क्यों? इसलिए कि वो टेम्परेचर से इसका पोटेंशियल, यानी जो रीजन है, ये जो रीजन बन गया, ये वाला रीजन, ये रीजन जो बढ़ गया, वो आसानी के साथ कम नहीं होगा बेटा। और ऐसे को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। कौन सा रीजन? शाबाश, डिप्लीशन रीजन। क्यों डिप्लीशन कहते हैं? डिप्लीट तो खाली, ये खाली तो नहीं है बेटा, तो फिर इसको हम डिप्लीशन रीजन क्यों कह रहे? जनाब ये खाली है। डिप्लीशन रीजन, DR, मतलब दिस इज डिप्लीटेड फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर, फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर। ये मोबाइल चार्ज कैरियर से क्या है जनाब? खाली है बेटा। अब ये रीजन हमारे साथ फिर बायासिंग पे डिपेंड करता है कि किस बायासिंग में ज्यादा होगा, किस बायासिंग में क्या होगा, कम होगा, जिसको इंशाल्लाह हमने कल डिस्कस करना है। सो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे साथ जो डिप्लीशन रीजन है, इसको डिप्लीशन रीजन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज डिप्लीटेड फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरियर, एंड दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। इन सारी चीजों को एक सिंबल की जरूरत है जो कि आसान बनाते हैं चीजों को, और वो सिंबल ये है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवोड। ये डाइवोड है कि इसमें से एक कैथोड होगा और दूसरा क्या होगा? एनोड होगा। कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा, ये आपके हम डिफाइन करते हैं। ये जो सिंबल है, this is a sign on the basis of conventional current, a sign on the basis of conventional current, conventional रिवायती करंट, conventional current। ओके जनाब, ये जो सिंबल है, यहां से आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। इसका मतलब कि जो कुछ यहां पे है वो अगर जाना चाह सकते हैं तो वो ओके है, परमिसिबल है, पर यहां से नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने क्या बनाया है? ये दीवार मैंने बनाया है, एंड दैट्स द रीजन कि ये मेरे साथ कौन सा डिवाइस है? शाबाश, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। इट जस्ट लाइक अ वॉल उस चीज को कहते हैं जो विच अलाउ वन वे ट्रिपिंग, जो एक ही डायरेक्शन में ट्रिपिंग को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। दैट इज कॉल्ड वॉल। सो यूनी डायरेक्शनल, एंड हेंस वी कैन से कि हमारे साथ क्या होगा? शाबाश,
we can say that it is a unidirectional device. So डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, जबकि दूसरे डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता है। एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। अब दिस मींस कि अगर आप डायोड को देखें, ये डायोड है, यहां से अगर कोई चीज जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो कन्वेंशनली कौन सा चीज जा सकता है? यहां पे वी कैन से होल्स, यहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल सिर्फ हरकत करेगा। कन्वेंशनल करंट कौन सी करंट होता है? कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जो किसकी वजह से है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से। पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्या है? वी कैन से होल्स है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस सिंबल इज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ होल्स। अच्छा, होल्स किस जगह में होते हैं? पी में होते हैं। तो ये जगह हो गया पी और ये जगह क्या हो गया? एन हो गया बेटा। अच्छा बेटा, पी हम क्या कहते हैं? दिस वन इज एनोड बेटा, एंड दिस वन इज वी कैन से कैथोड बेटा। दिस वन इज अ कैथोड एंड दिस वन इज अ एनोड। सो डायोड को अगर आप देखिए बेटा, डायोड में दो इलेक्ट्रोड है। दिस वन इज कॉल्ड कैथोड एंड दिस वन इज कॉल्ड वी कैन से एनोड। एनोड कंसिस्ट ऑफ पी टाइप मटेरियल, कैथोड कंसिस्ट ऑफ एन टाइप मटेरियल। एंड हेंस वी कैन से बेटा, हेंस वी कैन से कि एनोड कंसिस्ट ऑफ पी टाइप एंड कैथोड कंसिस्ट ऑफ वी कैन से एन टाइप बेटा। कन्वेंशनली इसको आप कैसे याद रखेंगे बेटा? आपसे एक महीने बाद ये सब कुछ भूल जाएगा बेटा। सो आप इस लकीर को देखो, जहां से ये दीवार बना है, इस लकीर को यू ड्रा करो, इसके ऊपर के बनाओ। इसका मतलब कि लकीर वाला साइड कैथोड हो गया, बगैर लकीर वाला साइड क्या बन गया? एनोड बन गया। बगैर लकीर वाला साइड क्या बन गया? एनोड बन गया। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। डायोड हमारे साथ कई तरह के होते हैं। डायोड जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड, वो फिर लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो भी ऐसा ही होता है बेटा, लेकिन यहां से इस पे क्या आता है? शाबाश, वी कैन से लाइट ऐसे आ जाती है। ये फोटो डायोड है। इस तरह हमारे साथ एलईडी है बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड, जो यूपीएस वगैरह में आपने देखे होंगे। वो लाइट को क्या करते हैं, बल्कि आजकल जो घरों में भी लगाते हैं एलईडीज को, तो उधर से लाइट ऐसे जाती है बेटा। ये सिर्फ आप इंटरटेस के लिए याद रखो। इस तरह हमारे साथ एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट डायोड है, जिसको हम कहते हैं जीनर डायोड बेटा। जीनर डायोड, वो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह है, लेकिन यहां पे तुमने क्या बनाना है? शाबाश, जेड बनाना है। क्या बनाना है? जेड। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस डायोड। दिस इज कॉल्ड जीनर डायोड। दिस कॉल्ड विच डायोड? शाबाश, वी कैन से जीनर डायोड। This was an introduction to the diode. So बेटा, डायोड कल हम डिस्कस करेंगे कि ये मेरे साथ ओहमिक सब्सटेंस है या नॉन ओहमिक सब्सटेंस है। सो ये मेरे साथ कौन सा सब्सटेंस है? नॉन ओहमिक है, क्योंकि ये किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से बना होता है बेटा। डायोड का अपना रेटिंग होता है, डिपेंड अपॉन द करंट बेटा। सो कल अगर आप डायोड को बेटा देखें, डायोड में कुछ बातें हैं। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। दिस विल बी एनोड, दिस विल बी कैथोड। दिस कंसिस्ट ऑफ पी टाइप मटेरियल, दिस कंसिस्ट ऑफ एन टाइप मटेरियल। ये मेरे साथ क्या है? यूनी डायरेक्शनल करंट है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। कौन सा है? यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। ये मेरे साथ क्या है? शाबाश, ये पहले दो बातें हो गई, दो एन। ये मेरे साथ क्या है? नॉन ओहमिक। कौन सा है? नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक सब्सटेंस। 14 नंबर पे कौन सा है? शाबाश, नॉन ओहमिक के साथ साथ। नॉन ओहमिक के साथ साथ एक बात ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। नॉन ओहमिक के साथ साथ जनाब ये मेरे साथ क्या है? शाबाश, दैट इज वी कैन से कंसिस्ट ऑफ वी कैन से 2 टर्मिनल है। कितने टर्मिनल पर है? 2 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल नहीं है ट्रांजिस्टर की तरफ। और इसमें कितने जंक्शन होते हैं? सिंगल जंक्शन होता है। कितने जंक्शन होते हैं? सिंगल जंक्शन होता है। और इसको आप कितने तरीकों से बायास कर सकते हो? 2 तरीकों से। टू तरीकों से हम बायास करते हैं। कितने तरीकों से बायास कर सकते हैं? 2 तरीकों से हम इसको बायास कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायोड्स। कल इंशाल्लाह हम बायासिंग के बारे में बात करेंगे। एक हमारे साथ होता है फॉरवर्ड बायास, एक हमारे साथ होता है रिवर्स बायास, और फिर इसके बाद
हम इसकी रेक्टिफिकेशन पे बात करेंगे कि रेक्टिफिकेशन है क्या, और रेक्टिफिकेशन के बाद हम ट्रांजिस्टर पे इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, कि इनके सर ने कहा कि आप 10 मिनट आप क्वेश्चन को दिया करें।